بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 دن کا سیز فائر ہوتا ہے جناب ایران اور امریکہ کے درمیان، اور یہ سیز فائر ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایم او یو سائن ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی نیٹی گریٹیز کچھ ہی دنوں میں سامنے آ جائیں گی اور ایم او یو سائن ہو جائے گا۔ لیکن ایم او یو کے سائن ہونے کے بعد کچھ شکیں ایسی ہیں، کچھ کلازز ایسے ہیں جن پہ ڈسکشنز ہوں گی، جیسے کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے۔ ان پہ جب ڈسکشنز ہوگی تو اگر وہ 60 دن کے اندر اندر وہ ساری ڈسکشنز کمپلیٹ نہیں ہوتی تو سیز فائر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، 60 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ابراہیم ایکارڈ جس کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک سپینر آئی ووڈ سے کہ پھینکا، اور وہ سپینر یہ تھا ٹرمپ کی طرف سے کہ جناب سب مسلم کنٹریز جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس کو سائن کریں۔ ٹھیک ہے، ماسٹر سٹروک ہو سکتا تھا، ماسٹر سٹروک ہے، اگر ساری گلف کنٹریز انکلوڈنگ یا ساری مسلم کنٹریز جو ہیں ابراہیم ایکارڈ سائن کر لیں تو بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہوگا ٹرمپ کے لیے۔ بٹ کیا سارے مسلم ممالک جو ہے وہ اس کو سائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ان کی انٹرنل جو حالات ہیں، مختلف ممالک کے اپنے اپنے انٹرنل حالات ہیں، اور وہ حالات کیا اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ فوری طور پہ جناب ابراہیم ایکارڈ جو ہے سائن ہو جائیں؟ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو اگر ابراہیم ایکارڈ کی طرف جائیں گے تو ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے اندر انٹرنل پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر لانگ رن میں دیکھا جائے تو ابراہیم ایکارڈ کی وجہ سے اگر مڈل ایسٹ میں یا مسلم ممالک میں امن قائم ہو سکتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ۔ لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا اس کی گارنٹی ہے کہ جناب پھر اسرائیل جو ہے ابراہیم ایکارڈ سائن ہونے کے بعد کسی بھی مسلم ملک پہ حملہ نہیں کرے گا، انکلوڈنگ ایران؟ اور کیا ایران، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے ابراہیم ایکارڈ سائن کرے گا؟ اگر ایران ابراہیم ایکارڈ سائن کرتا ہے اس ایگریمنٹ کے بعد تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی امریکہ کے لیے اور تل اویو کے لیے۔ اور اگر ایران اس چیز پہ راضی ہو جاتا ہے کہ جناب پہلے ایم او یو سائن ہو، پھر ایگریمنٹ سائن ہو، اور اس کے بعد ابراہیم ایکارڈ بھی سائن ہو، تو پھر میرے خیال میں کسی بھی مسلم ملک کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ جناب وہ اس سے پیچھے ہٹ سکے ابراہیم ایکارڈ سے۔ سو ابراہیم ایکارڈ جو ہے پھر سب کے لیے ایک کمپلشن بن سکتی ہے۔ انٹرنل حالات ہر ملک کے ڈیفرنٹ ہیں، ان کو ذرا ذہن میں ضرور رکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، ذرا تھوڑا سا میں انٹرنل پالیٹکس اور بجٹ کی طرف آنا چاہوں گا، اور بجٹ پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بجٹ کے اندر آئندہ جو بجٹ آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اس میں کیا کوئی ریلیف مل سکتا ہے عوام کو، یا یہ میئر سٹیٹمنٹس ہوں گی اور اس کے بعد جناب پتہ چلے گا کہ حکومت نے آپ کی جیب میں 20 روپے ڈالے اور دوسری جیب میں سے انہوں نے 200 روپے نکال لیے؟ کیا اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی، یا واقعی ہی آپ کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو پھر بہت ٹف ٹائمز آر اہیڈ۔ پہلے میں ذرا بجٹ پہ بات کر لوں جناب، اور بجٹ پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب فارمر فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب، ان سے میں بات کر لوں، اور اس کے بعد میں بات کروں گا جناب ڈاکٹر احمد سعید صاحب سے، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اسد عمر صاحب، بجٹ کی آمد ہے، اور پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کتنی جناب ہماری دھلائی ہونے والی ہے؟ اسد صاحب، کوئی یہاں پہ بریدنگ سپیس ملے گا ہمیں؟ کوئی آرام سکون کی کوئی خبر ملے گی ہمیں، یا ہم امید چھوڑ دیں؟ ہو سکتا ہے بجٹ کے اندر یقیناً کوئی چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں بھی ہوں گی، لیکن وہ اچھا چھوٹی چھوٹی ہوں گی، مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ بجٹ جو ہے کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے گا۔ اچھا اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلے جو اس سال کا آپ کا بجٹ تھا، تو اس کا جو تخمینہ بنایا گیا تھا، تو ایف ڈی آر جو ہے وہ ٹیکس اکٹھے کرنے میں بری طریقے سے ناکام رہا ہے۔ کوئی 500 600 ارب روپے کا خسارہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، یعنی جو ٹارگٹ تھا اس سے کم ٹیکس جمع ہو رہے تھے۔ تو ایک تو اگلی دفعہ کا جو ٹارگٹ ملنے والا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف آپ سے اصرار کرے گا کہ کوئی یا تو ایگزسٹنگ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کی شرح میں اضافہ کیا جائے، یا کوئی نئے ٹیکس لگائے جائیں۔ اچھا دوسری وجہ جو بنی ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور بینجامن نیتن یاہو نے جو دنیا کے اوپر ظلم کیا ہے، صرف ایران کے اوپر نہیں، وہ جنگ جو شروع کر کے اس کے نتیجے میں دنیا میں افراط زر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی افراط زر کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بجٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے شرح سود جو ہے
वो जो कमी मुतवक्का थी पहले वो नहीं हो रही है, ये भी मुमकिन है कि बढ़ा दी जाए। तो ये सब देखते हुए बजट के अंदर स्पेस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आप कह रहे थे छोटी छोटी खबरें हैं अच्छी, वो छोटी छोटी खबरें अच्छी सुनाई दे, छोटी छोटी सही नहीं है तो नहीं, सुना मेरे दो। मेरे पास नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो वजीर खजाना ने खड़े होकर वहां पे तकरीर करनी है ना, हाँ और उसने उसके बाद वो टॉकिंग पॉइंट्स देने हैं वजारत इत्तलात को, हाँ तो उसने को दो तीन अच्छी चीजें जरूर उसके अंदर डालनी है। हाँ तो वो कहानी जो है वो तकरीबन ऐसी होगी कि उसमें आपको बताया जाएगा कि जी ये 10 रुपए आपकी दाईं जेब के अंदर डाल दिया गया है, हाँ। और अगले दिन के आप जो तफसील पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा बाईं जेब से 100 रुपए निकाल भी लिए गए। अच्छा अच्छा, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं ना, आपको पता है, आप फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। सो उस सर वक्त मैं तो मेरी जिंदगी मिफ्ता ने आसान कर दी थी। वो बजट जो है पिछले साल का, मतलब मेरे जिस हमारा जो तरीके इंसाफ का पहला साल था, हाँ वो मुस्लिम लीग नून बना के चली गई थी। हाँ तो हमने तो उसमें से माइनर सिर्फ अमेंडमेंट की थी, वरना तो बजट हमें इनहेरिटेड मिला था। हाँ। अच्छा, तो अभी मतलब फिर हम मतलब कि ना ही समझे फिर कि क्यों क्यों ऐसे ही वाई। नहीं, देखें हाँ देखें, मैं चले आपको जरा सा थोड़ा सा तफसील के अंदर हाँ, इसका जवाब प्लीज देता हूँ। प्लीज, हाँ देखिए, एक तो है अखराजात की तरफ अगर आप देखें, जी। अखराजात जो आपके हैं, सबसे बड़ा इस वक्त जो है बजट के अंदर जो खर्च पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के टैक्स पेयर बर्दाश्त करते हैं, वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है। ठीक है। पाकिस्तान में जो आपका शरह जो हो गई है, जिस हद तक कर्जे पहुंच चुके हैं और जो उस पे सूद की अदायगी करनी पड़ती है, तो बजट का एक सबसे बड़ा हिस्सा वो खा जाते हैं। अगर यही हालात हो किसी प्राइवेट कंपनी की, तो वो प्राइवेट कंपनी बैंकरप्ट हो रही हो, तो फिर क्या करता है बैंकर? बैंकर फिर उनके साथ बैठता है और वो कहता है हाँ कि अच्छा ठीक है, हमें नजर आ रहा है ये पैसा हमारा सारा डूब रहा है, तो चले फिर ऐसा करते हैं यार, ये आपने मुझे जो 100 देने थे ना, तो 100 के बजाय आप मुझे 80 दे देना या 70 दे देना, हाँ और 5 साल में देने थे इसके बजाय अब 10 साल दे देना, हाँ। जिसको रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है बैंकिंग की इस्तेलाह के अंदर। ठीक। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो कर्जाजात हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। ये जो मौजूदा जो सूरत हाल है, उससे अवाम बिल्कुल पिस गए हैं। दूसरा, आपके जो बड़े अखराजात हैं, जो खसारा हो रहा है, आपकी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हैं, जो सरकारी कंपनियां चल रही हैं, उनके जो खसारे हो रहे हैं, सैकड़ों अरबों रुपए का वहां पर खसारा हो रहा है। वो खसारा अगर आप उस पे से बोझ हटाएंगे या बोझ कम करेंगे, तो फिर उससे कोई स्पेस पैदा होती है। आखिरी चीज एक्सपेंडिचर की साइड के ऊपर, जनाब पेंशन्स आपका खा रही हैं इस वक्त आपके बजट को। हम्म आपको पता है कि इस वक्त पेंशन में ये जो पिछला साल आपका खत्म हुआ है, पेंशन में आपने ज्यादा पैसा इस्तेमाल किया है बनिस्बत तमाम वफाकी हुकूमत। अगर मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर को निकाल दूं, बाकी पूरी सिविलियन फेडरल गवर्नमेंट को चलाने का जितना खर्चा है वो कम है, और सिर्फ पेंशन का खर्चा ज्यादा है। हम्म। सो पेंशन रिफॉर्म की सख्त तरीन जरूरत है। लोग उसके बाद जो है वो सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। वो भाई को, भतीजे को, फुप्पी को, पत्नी, नवासी को, किस किस को वो पेंशन चलती रहती है। सो वो पेंशन रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। ये तो तीन है एक्सपेंडिचर की नहीं, साइड पेंशन पे। पेंशन रिफॉर्म में क्या किया जाए, मतलब भाई फूफी भतीजे को ना सर भर्ती एक तो किया जाए? एक तो जाहिर है, देखिए दो चीजें जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दी ना, कि आपको लिमिट कर, नॉर्मल जो पेंशन का जो सारी दुनिया के अंदर निजाम होता है कि आपके जो इमीडिएट बेनिफिशियरी होता है उस इमीडिएट बेनिफिशियरी को मिलता है। और बहुत से बहुत ये है कि आपके अगर बच्चे हैं जो कि 18 साल की उम्र से कम है, उनको मिल जाता है। उसके बाद जो है वो पेंशन के अंदर, अब पेंशन का निजाम तो और बदल गया है। देखें, ये जो सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट, यानी आपको पेंशन कितनी मिलनी है वो डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर वो मुतय्यन किया हुआ है। दुनिया मूव कर गई है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में, तनख्वाह में हम्म से कटेगा, वो इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया जाएगा, उसमें से जितना रिटर्न आएगा, ज्यादा रिटर्न आएगा आपको ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, कम रिटर्न आएगा तो कम पेंशन मिलेगी। या जैसे वो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो हम्म वैसे ही अब सिस्टम पे चले गए। अब कंपनीज जो है वो उन्होंने ये अपने ऊपर जो है वो बोझ लेना छोड़ दिया। अपने ऊपर क्या, आने वाली नस्ल के ऊपर वो बोझ है ना। मुल्क के लिहाज से अगर आप देखें तो पेंशन रिफॉर्म की बड़ी सख्त जरूरत है। हम्म ये तो हो गया एक्सपेंडिचर वाली साइड। अब हम्म रेवेन्यू की साइड के ऊपर आए। यार वो कहते हैं कि स्पेस बहुत कम है, क्योंकि आईएमएफ के टारगेट्स हैं। भाई हम्म आईएमएफ ने ये कब कहा है कि बड़े बड़े जागीरदारों से टैक्स ना लो? हम्म आईएमएफ ने आपसे कब ये कहा है कि बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर जो सारे कोई कोई छुपे हुए, कोई जंगल के अंदर नहीं है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मेन
एरियाज के अंदर बड़ी बड़ी मार्केटों में करोड़ों रुपए का जहां पे कारोबार हो रहा है, वहां से टैक्स आपका इकट्ठा हो नहीं रहा। थोड़ा बहुत जहां से होता है वो भी कराची से होता है, बाकी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सो उसको आप ना कंट्रोल करें। आगे प्रॉपर्टी का काम हो नहीं रहा, प्रॉपर्टी यहाँ सही पे चल नहीं रही, प्रॉपर्टी की खरीदो सही फरोख्त हो नहीं रही। सही। देखें यहाँ पे एक इतना बड़ा, आपको भी पता है, इतना बड़ा यहाँ पे एक साइकिल चल रहा था, उसके साथ कई हम्म। लोग नथी थे जो उस सही कारोबार के साथ। प्रॉपर्टी तो सही। वैसे ही बैठ गई है, ले ही नहीं रहा कोई। देखें, आप बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की। वो जो हजारों लोग नथी होते हैं ना, वो जी हाँ, हजारों लोग नथी होते, हाँ तो हाँ। उसी की वो बात जब कर। उसके ऊपर, जब उसके ऊपर घर बनते हैं, जब उस पे अपार्टमेंट्स बनते हैं, हाँ सरिया बिकता है, सीमेंट बिकता है, हाँ बाकी चीजें होती है, हाँ। मजदूरी तो दिहाड़ीदार को आप मिलती किसकी है। बात कर रहे हैं? मैं सर जमीन की बात कर रहा अच्छा हूं। अच्छा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आपको जो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान की शहरी मईशत का सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला शोबा है। उसको तो हम्म। बिल्कुल, बल्कि उसका तो फायदा होगा। अभी तो जितनी पागलों की तरह महंगी जमीनें होगी हैं, क्योंकि सारा काला पैसा वहां पे जाके छुप सकता है, तो उसकी वजह से घर महंगे हैं, अपार्टमेंट महंगे हैं, जाहिर है लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो महदूद है। एक्चुअली तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को फायदा होगा, जो मैं कह रहा हूं इससे। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई, जहां बड़े बड़े वो सेक्टर्स हैं जहां से लोग बेतहाशा पैसा बना रहे हैं और वो टैक्स नहीं दे रहे, जब तक आप खर्चे कम नहीं करेंगे, जब तक उन सेक्टर से आप टैक्स वसूल नहीं करेंगे, तो भाई यही होगा कि अगर पेट्रोलियम लेवी, जो एक आम लड़का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में जाके पेट्रोल डलाता है, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है। आपको पता है 2021-22 में पेट्रोलियम लेवी जो है, उसमें कोई 113 अरब रुपए लिए गए थे। 2021-22 में 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपको पता है इस साल जो है उसी पेट्रोलियम लेवी में, जो 4 साल पहले सिर्फ 113 अरब रुपए लिए गए थे, वो 1500 अरब रुपए से ज्यादा लिया जा रहा है। यानी 1400 अरब से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है सिर्फ इस 4 साल के पीरियड के अंदर। 117 रुपए लीटर पे आप पेट्रोलियम लेवी लेके चले गए। तो जब पाकिस्तान के मुतवसत तबके, पाकिस्तान के गरीब जो चीज खरीदता है, उसके ऊपर टैक्स लगाते हुए आप 2 मिनट नहीं लगाते हैं, तो ये जो ताकतवर लोग आते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं क्या करें जी, मुश्किलात बहुत है। अच्छा और ये सारी हुकूमतों की बात है, ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है, ये सारी हुकूमतों की बात है। असद उमर साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद है और कोई अभी तक कोई अच्छी खबर इन्होंने मुझे नहीं दी है। डोंट यू थिंक कि जनाब अभी जो सिनेरियो बना हुआ है पूरी दुनिया का, मैं सिर्फ किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपने भी इसकी निशानदेही की, मैं भी उस पर बात करता रहता हूँ, मैं दोबारा बात कर लेता हूँ उस पर कि ये जो जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं उससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है इकनॉमिकली। अच्छा, हमारे लिए उसमें से बेसिकली होता तो ये है ना कि जो क्राइसिस होता है उसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस पाकिस्तान जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ तो निकाल सकता है, क्योंकि देखें जितना पैसा यहाँ से बाहर जाता था इलीगल तरीके से, वो पैसा वापस आने के लिए भी तैयार है, क्योंकि देयर इज़ अ सिचुएशन ऑल ओवर, ठीक है? वो वापस आने के लिए तैयार है, किसी हद तक आया भी, कुछ अरसे के लिए कराची में आया, ठीक है? कराची में लोगों ने खरीदो फरोख्त की, कोई डीएचए में घर खरीदे, कोई उन्होंने वहाँ पे जनाब थोड़ी सी पैसे लगाए भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी पोर्ट्स जो है, 2-3 पोर्ट्स जो है, उसमें काम भी शुरू हो गया। सो उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई पाकिस्तान में। डोंट यू थिंक इन द डेज टू कम ये बजट जो है उसमें कोई ऐसी आसानियाँ पैदा कर दी जाए कि जो पैसा लेके आना चाहते हैं वो आके लगाएं, वो तो आना अच्छा चाहते देखिए, हैं, उसमें कोई सही आसानी पैदा हो सकती है। सही। देखें, सबसे पहले तो ये देख लें कि वो पैसा जो है सबसे ज्यादा दुबई जा रहा था। तो वो दुबई जाता क्यों था? दुबई वो जाता है दो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। एक तो वजह उसके अंदर ये है कि वहां पे वो टैक्स का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर है, ना होने के बराबर टैक्सेस हैं। तो चले आप वो नहीं कर सकते फौरी तौर पर यहाँ पे। लेकिन जो दूसरा वजह है जिसकी वजह से कारोबार, मैं कारोबार करने वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पैसा यहाँ से निकाला दुबई के अंदर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की और कारोबार वहां पे कर रहे हैं, वहां का फैसला साजी का निजाम देखें, उसकी शफाफियत देखें, उसकी स्पीड देखें, जिस तरीके से वो किया जाता है। तो क्या हम कम से कम कोई टारगेटेड कुछ एरियाज, चले पूरा पाकिस्तान अब नहीं ओवरनाइट कर सकते, ठीक, क्या इस आने वाले साल के अंदर
ہم ٹارگیٹڈ کوئی انڈسٹریل زونز کے اندر کچھ ایریاز کے اندر یہ نہیں کر سکتے کہ جو بیسٹ ان کلاس جس طرح کہا جاتا ہے، یعنی جو بہترین فیصلہ سازی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بہترین نظام چلانے کا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بندے سے ڈیل کرتا ہے انسان، اور اس کا کام ہے باقی ساری گورنمنٹ کی ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا. یہاں آپ 27 ایجنسی سے ڈیل کرتے ہیں، وہ 27 میں سے 25 جو ہیں وہ صرف آپ سے رشوت مانگتے ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ جس قانون کے تحت وہ بنے ہوئے ان سے آپ سے کام کروانا ہے. کوئی ایسا سو یہ جو ریلیف، اسد صاحب I'm sorry I'm cutting you، لیکن کوئی ایسا ریلیف ملنے جا سکتا ہے ان دس کمنگ بجٹ کو مل سکتا ہے، کوئی اوپننگ ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آ کے پیسہ لگانا چاہیں؟ نہیں، آپ ریلیف کوئی ایمنسٹی اسکیم وغیرہ کی بات کر نہیں، رہے ہیں؟ میں کوئی اسکیم ہو سکتی ہے. دیکھیں نا کتنا پیسہ جو ہے وہ وہاں سے مختلف یہ گلف کنٹریز میں سے بھی آیا ہے یہاں پہ، تو اور میں آپ سے اس میں کوئی یہی تو عرض ریلیف کر مل رہا. سکتا ہے کوئی ایسا؟ دیکھیں میں یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ جو ہے لوگ کیوں باہر جاتے ہیں پیسہ لے کے؟ پیسہ بنانے کے لیے جاتے ہیں نا، کہ زیادہ پیسہ ملتا ہے. وہ اس لیے تو نہیں پاکستان سے باہر لے کے جا رہے کہ ان کو پاکستان سے دشمنی ہے. وہ آپ بہتر پیسہ بنانے کے مواقع، وہ مواقع فراہم کریں نا اگر آپ سسٹینیبل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ تو یہ اس قسم کی ایمنسٹی اسکیم 36 پہلے آئیں، 36 آگے آ جائیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے ون ٹائم انفلو ہوتا ہے اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس سے انفیکٹ جو ہے وہ جو منی لانڈرنگ بارہ ہو رہی ہے اس کو آپ اور انسینٹیوائز کرتے کہ بھائی یہ تو ہر 3 سال کے بعد آنی ہے، کر لو. لیکن اگر میں بہتر نظام دے سکتا ہوں، بہتر انفراسٹرکچر دے سکتا ہوں، بہتر فیسلٹی، انفراسٹرکچر تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے. جو ڈیسیشن میکنگ کے پروسیس ہیں، جس نظام سے مینجمنٹ سسٹم سے آپ چلا رہے ہیں، ایک آپ اٹھا لیں، لیٹس سے جی کراچی کے اندر آپ نے اٹھا لیا، پورٹ قاسم اٹھا لیا. آپ نے کہا یار یہاں پہ جو ہے نا باقی میں کرتا رہوں گا انڈسٹریل زون، پورٹ قاسم کے اندر مجھے وہی سپیڈ، وہی کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ چاہیے جو دبئی میں ہوتی ہے. یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر فوکس طریقے سے کریں، ایس آئی ایف سی کو کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہیے نا. اگر آپ نے ایک اسپیشلائز ادارہ بنایا ہوا ہے تو اس قسم کا کوئی پروجیکٹ اٹھائے، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں، پیسہ بنانے دیں ان کو، خدا کا واسطہ. ایف بی آر ان کے سر پہ جو چڑھا ہوا ہے اور 27 ایجنسیز جو ان کے ہیں، ادھر سے جو ناجائز ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ان کو بچائیں. یہ بنیادی چیزیں. اور اس کے ظاہر ہے بجلی اور گیس جو آپ نے پاگلوں کی طرح مہنگی کر دی ہے وہ کمپیٹیو ریٹس کے اوپر دیں. اصل آپ سسٹینیبل طریقے سے، جس سے ملازمتیں بھی کریٹ ہوں، جس سے کاروبار بھی ملک کا چلے، جس سے ایکسپورٹ بھی ملک کی بڑھے، تو پھر یہ طریقہ ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا. جی ٹھیک ہے. وہ تو میرے خیال میں کچھ اس پہ آپ کے خیال میں کچھ بجٹ میں اس میں کوئی ایسی کوئی ہمیں کوئی ریلیف مل سکتی ہے، یا ان لوگوں کو، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، ان لوگوں کو ریلیف مل سکتی ہے جو واپس یہاں پہ پیسہ لانا چاہتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے طریقہ کار تو بتا دیا آپ نے جی کہ جی جی ایسا میں ہونا چاہیے. میری خواہش تو یہ ہوگی کہ ایسے فیصلے اس کے اندر ہوں اور بجٹ کے اندر ہمیں ایسے نظر آئے، انسینٹیوائزیشن نظر آئے کہ جو ملک سے باہر پیسہ واپس ملک کے اندر لانا چاہتا ہے اس کو تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دینی چاہیے آپ کو. تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو کر رہی ہے، یہ نہیں کری حکومت، یہ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا. لیکن میری خواہش ہوگی اگر ایسا کریں تو پاکستان کی معیشت کے لیے وہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی. اچھا، کوئی اور سجیشن آپ نے کوئی زیادہ کوئی اچھی خبریں نہیں دی آپ نے؟ اور نہ، میں تو آپ کو اچھی خبریں اچھا ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے اخراجات نہیں کرنے اور کہاں سے ٹیکس آپ نے لینا ہے. اب آ جائیں جہاں میرے خیال میں ٹیکس کم کرنے کی ضرورت، عوام کی ریلیف کی اب بات کر لیں. دیکھیں پیٹرولیم لیوی جہاں پہ آپ لے گئے اس کو 117 روپے فی لیٹر، کیونکہ آپ سے باقی کہیں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے متوسط طبقے کے اوپر اور غریب، کیونکہ وہ ڈیزل جو ہے، وہ بسیں، منی بسیں جو ساری چلتی ہیں وہ ساری ڈیزل کے اوپر چلتی ہیں، موٹر سائیکلیں ساری پیٹرول کے اوپر چل رہی ہیں، چھوٹی گاڑیاں ساری پیٹرول کے اوپر چل رہی ہیں. تو ایک بہت زیادہ آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے، اس بوجھ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آج سے صرف یہ جب تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت 50 روپے لیٹر تھا، آپ اس کو 117 روپے لیٹر کے اوپر لے کے چلے گئے. ایک تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 70% بڑھ گئی، جو آپ کا قصور نہیں تھا، وہ تو امریکہ اور نیتن یاہو نے کرا دیا. اور جب وہ 70% عالمی منڈی کی قیمتیں بڑھی تھی، ساتھ ہی آپ نے دگنے سے زیادہ ٹیکس کر دیا. ایک اس کو واپس کم کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہت ضرورت سے زیادہ بھاری ٹیکسیشن کر دیا. دوسرا، جو پچھلے 2-3 سال کے اندر تنخواہ دار طبقے کے اوپر جس طریقے سے ٹیکس ریٹ بڑھایا گیا ہے نا، وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا ہے. اور ظاہر ہے یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے نا، وہ یہ صحیح ہے موٹر سائیکلیں چلانے والا اور چھوٹی گاڑیوں والا ہوتا ہے، ان میں سے 95-96% جو ہے.
सो उसको दोहरी मार पड़ गई है। सो वो सैलरीज के ऊपर जो टैक्स रेट था, उस टैक्स रेट को वहीं वापस लेके जाने की जरूरत है जहां पे 3-4 साल पहले तक था। वो कोई बहुत कम नहीं है, वो भी खित्ते के अंदर निस्बतन जरा ज्यादा वाले टैक्स रेट हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं वहां तक वापस ले जाएं। फिर जो कारोबार कर रहे हैं, जो आपको पता है ना कि सरमायाकारी की पिछले पाकिस्तान की 50 साल की तारीख के अंदर जो 2 साल सबसे कम सरमायाकारी की शरह रही है, वो ये वाला साल जो अभी गुजर रहा है और इससे पिछले वाला साल था। तो सरमायाकारी जो बिल्कुल रुक गई है, उसकी एक वजह, उसकी एक से ज्यादा वजह हैं। उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, उसके अंदर सियासी बहरान भी है, उसके अंदर जो है बिजली और गैस महंगी होना भी है। बट एक वजह यह भी है कि आपने जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो बेवकूफ लोग हैं, जो एफबीआर के टैक्स नेट के अंदर काम कर रहे हैं, जो चोरी नहीं कर रहे, उनकी शरह जो थी टैक्सेशन की, उसमें तेजी से इजाफा किया गया और उसके ऊपर एक सुपर टैक्स लगा दिया गया। उन्होंने कहा ये सिर्फ 1 साल के लिए इमरजेंसी मेजर है। 4 साल हो गए वो सुपर टैक्स अभी तक चल रहा है। ठीक है। सुपर टैक्स खत्म करना चाहिए और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का फौरी तौर पे अगर आप वहां नहीं ले जा सकते जहां पे आज से चंद साल पहले थे, तो सालाना कोई 1-1% का ऐलान करें कि जी अगले 3 साल 5 साल जो है 1% या 2% सालाना उसमें कमी आएगी, ताकि दोबारा सरमायाकारी होनी शुरू हो। ठीक लोग जो फॉर्मल सेक्टर में आना चाहते हैं उनको कोई इंसेंटिव मिले कि मैं ठीक क्यों उसमें आऊं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत ही बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी। बट लेट्स सी बजट में आता क्या है, क्योंकि बजट में तो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ देम, वो तो पलंदे पड़े होते हैं, वो तो पढ़ नहीं सकते, मतलब पढ़ सकते हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते नहीं शायद, या एक बड़ा टेक्निकल चीज़ होती है। जैसे मेरी अपनी इकॉनमी ख़राब है, मुझे इकॉनमी का इतना पता नहीं है, और मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे से तो अच्छा, नहीं पढ़ी जाती, तो वो मैं मेरे क्योंकि ख्याल में मैं नहीं पढ़ते। क्योंकि मैं उस असेंबली में 8-9 साल बैठ चुका हूं, तो देखिए आपको हर एक कोई किसी भी दुनिया की असेंबली के अंदर मईशत का एक्सपर्ट नहीं होता। जी हाँ। लेकिन वो जो लोगों से वोट लेके आए हुए ना, उनको ये पता है कि उन लोगों का पेन पॉइंट क्या है, उनको तकलीफ किस चीज से पहुंच रही है। हाँ, वो इश्यूज के ऊपर तो कम से कम वो पढ़ सकते ना यार। अपने किसी नौजवान को दे दें कि भाई किताब में से बता इसके पेट्रोलियम लेवी के ऊपर क्या है, सही है। तनख्वाहदार तबके की टैक्सेशन के ऊपर क्या है, कम से कम उन इश्यूज के ऊपर तो बात करें ना। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। असद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर अहमद सईद साहब, जियो पोलिटिकल एनालिस्ट है। उनसे ज़रा पूछ लें ईरान और अमेरिका में MOU, उसके बाद एग्रीमेंट और फिर अब्राहीम अकॉर्ड कैसे होगा, क्यों होगा, और क्या वाकई ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है सारे मुस्लिम ममालिक के लिए कि वो जनाब अब्राहीम अकॉर्ड की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर अहमद सईद साहब मेरे साथ मौजूद है। जनाब डॉक्टर साहब, सीज़ फायर हो गया, 60 दिन का हो गया, इसके बाद MOU, और उसके बाद जनाब अगर सारी नीटी ग्रिटीज़ अगर तय नहीं पाती 60 दिन के अंदर, तो वो जनाब वो सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाएगा, और फिर उसके बाद अब्राहीम अकॉर्ड। क्या आपके ख्याल में ईरान जो है अब्राहीम अकॉर्ड साइन करेगा? मेरे ख्याल में तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो एक कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ हनूज दिल्ली दूरस्थ। अच्छा। तो वो आई थिंक एंड प्रोडक्ट के तौर पे अगर कहीं पे ये आएगा तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन उसमें भी इब्राहिम अकॉर्ड की जो शेप है, उसको मौजूदा शेप कुछ मुख्तलिफ है। और जब ये 2019 में लॉन्च हुआ, जेरेड कुशनर ने बहरीन में मनामा में एक कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इसके खदोखाल बयान किए थे, और उसमें तो क्लियरली 2 स्टेट का जिक्र था कि इज़राइल अलहदा होगा और पैलेस्टाइन अलहदा होगा। और उसके अलावा उसमें बाइंडिंग लाइन 1967 की जो UN की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक है। तो अब उसको लेके सामने अब इस वक्त के दौर में, क्योंकि उसके बाद से अगर हम इसराइली प्रेसिडेंट के बयानात देखें और जो उन्होंने UN के अंदर भी ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी पेश किया, तो वो तो सारे उसके कंट्रवेंशन के तौर पे हैं। तो दैट मीन्स नाउ इब्राहिम अकॉर्ड प्रेजेंट शेप में क्या है और उसकी क्या खदोखाल है, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक डुबियस सा एक इशू है। और इस वक्त क्यों उन्होंने इसको टाइम एंड स्पेस की भी बात कर लें कि क्यों इसको डाला गया, तो मेरे ख्याल में 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि अगर आइडियल जो इनकी प्लानिंग थी जिसके अंदर इन्होंने आना था, हफ्ते के अंदर इन्होंने नई जो इनके रूहानी पेशवा हैं उनको इन्होंने शहीद किया, और उसके फ़ौरन बाद एक अपराइजिंग होनी थी, अपराइजिंग के बाद
टॉपल होनी थी गवर्नमेंट और एक नई गवर्नमेंट जो इनके क्लाइंट होती वो आ जाती और उसके बाद फिर एक शांति का माहौल हो जाता और उसके अंदर फिर ये कि इब्राहिम अकॉर्ड को ये साइन करते। तो मेरा ख्याल है उस प्लानिंग का एंड पॉइंट जो है एक इब्राहिम अकॉर्ड ज़रूर था और अब इसको एज ए डिस्ट्रैक्टर के तौर पे डालना मेरे ख्याल में भी एज ए फीलर के तौर पे डाला गया कि शायद ये आगे इसकी कोई बातचीत एंड में आएगी। तो मेरे ख्याल में अभी तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जैसे सूडान है, सूडान ने साइन तो किया है लेकिन उसने आगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन में नहीं गया, इसलिए कि अब उनके सूडान में आपको पता है कि दो मुतारिब ग्रुप्स हो गए, एक ने साइन किया दूसरे ने नहीं किया हुआ, तो उस वजह से वो। लेकिन डॉक्टर साहब कई ऐसे भी तो मुल्क हैं ना, मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया हुआ। मतलब कि साइन किया जी हुआ जी, है, उसमें recognize किया हुआ इजराइल। फोर फ्रंट पे तो देखें वो है यूएई है, यूएई तो अभी आया ना जी, उससे पहले कई ऐसे ममालिक हैं जो पहले से कर चुके बायलैटरल जी जो बायलैटरल आपस में इन्होंने किए हुए उसमें तो आई थिंक 79 में किया था हैं। डिफरेंट स्टेजेस पे किया, डिफरेंट मुस्लिम ममालिक ने जी किया हुआ इजिप्ट ने है। जी हाँ, और शायद 76 में इन्होंने किया था जॉर्डन ने। जी जी, तो वो दो तो आपस में लेकिन वो बायलैटरल हैं, उसमें रिकग्निशन ऑफ इजराइल है, आपकी बात सही है, लेकिन बाकियों के लिए रिकग्निशन ऑफ इसराइल स्पेशली फॉर पाकिस्तान, स्पेशली फॉर सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जिनके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि टू स्टेट के ऊपर पहले राज़ी हुआ जाए और इस पैलेस्टाइन स्टेट को एज़ पर द यूएन रेजोल्यूशन उसको रीइंस्टेट किया जाए। और पाकिस्तान की जो है इसके ऊपर बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग वो है एक बैकिंग है उसको, और उसका लिंक हमारा कश्मीर के साथ बनता है। वी जस्ट कैन नॉट गो इनटू इब्राहिम अकॉर्ड विदाउट टॉकिंग अबाउट द कश्मीर। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज डॉक्टर साहब कि अगर हम कहें कोई ऐसी स्टेज बनती है, कोई ऐसी स्टेज आती है, चले ईरान से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, अपने मुल्क के अंदर आ जाते हैं एंड हमारे ऊपर ऐसी कोई यहाँ पे सिचुएशन बनती है कि जनाब हमने इब्राहिम अकॉर्ड साइन करना ही करना है, तो उससे पहले हम अपने कोर इश्यूज जो है वो ले डाउन कर सकते हैं अमेरिका के आगे कि जनाब ये हमारे कोर इश्यूज हैं जो इंडिया के साथ हैं, अगर वो सॉर्ट आउट कर लिए जाएँ, ठीक है, कश्मीर का इशू है, सरक्रीक है, देर सो मेनी जैसे याचीन है, सो हम सारे इशूज उनके से कहें जी कि आप मीडिएशन करा दें, आप सॉर्ट आउट करा दें, तो वी कैन गो फॉर इब्राहिम अकॉर्ड। जी हो सकता कैन वी है, डू दैट? जी जी हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि उसमें फिर एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा कि इंडिया जो है हमेशा कहता रहा है कि मुझे मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं चाहिए मुझे। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना वो तो टाइम एंड फ्रेम में होती है, जी, अब टाइम एंड फ्रेम चेंज हो गया, अब पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुख्तलिफ है, पाकिस्तान अब दुनिया के हवाले से पाकिस्तान का एक स्टेचर है, उसमें बैकिंग फ्रॉम चाइना, बैकिंग फ्रॉम ऑल मिडल ईस्ट कंट्रीज़, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम कोई एक कंट्री ऐसा नहीं है जो कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करता हो। इवन ओपनली अगर आप देखें तो इसराइल ने भी कभी पाकिस्तान के रूल के ऊपर बात नहीं की ओपनली, शुरू में एक दो स्टेटमेंट्स आई थी, उसके बाद से नहीं आई है। तो उस हवाले से पाकिस्तान तो एक मुस्तनद एक हैसियत के साथ रीजन में अब ग्रो कर रहा है, तो उसमें अभी देखें इंडिया के अंदर बहुत सारी सेन वॉइसेस आना शुरू हो गई हैं कि वी शुड टॉक टू पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका के अंदर भी ये बातें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ज़ेर बहस आई हैं कि अगर हमने पूरा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत दुनिया से तमाम वॉर्स को एलिमिनेट करना है, विच इंक्लूड्स द यूक्रेन ऑल्सो, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इसके ऊपर भी कुछ ऐसी वॉइसेस आ रही हैं कि इसके ऊपर भी बातचीत की जाए ताकि ये सारे मसाइल जो हैं एक ही दफ़ा इनको हल किया जाए। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर बातचीत होती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी की तरफ जाते हैं जो कि यूएन के अंडर आ जाए, जिसमें कि हमारा वाटर रिकॉर्ड भी आता है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात आती है, सिरक्रीक आता है, सियाचिन आता है, कश्मीर का इशू आता है, तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज़ जो है ना एक साथ पर इनको डील किया जाए, साथ ही साथ जो गल्फ़ के इश्यूज़ हैं उसका भी डील किया जाए। शायद एक पॉइंट है जिस पे थोड़ी सी शायद हमें वो उसका इब्राहिम अकॉर्ड का लेटर पार्ट ऑफ द डे जो इब्राहिमिक रिलीजन्स के ऊपर इंटरफेथ एक हारमनी के ऊपर बात की है, उसका जो ओवरऑल मेक है शायद उसको उलमा के हवाले से कुछ देखने की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी एक डुएबिलिटी की रेंज में लाया जा सकता है। हर मुल्क के अपने इंटरनल सिचुएशंस हैं, इंटरनल हालात होते हैं और हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, सो हर मुल्क के लिए अलहदा उसको अंदर चेंजेस ला के अकॉर्ड में पॉसिबिलिटी है कि उसके आगे रख दिया जाए। जैसे अभी तो उन्होंने एक सब पे बाइंडिंग कर दी ना कि सब जो है जाए इब्राहिम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि थोड़ी सी हर मुल्क की इंटरनल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए
फिर एकॉर्ड के अंदर अल्टरेशंस करके उनके आगे रख दी जाए। लेकिन बेसिकली तो काम तो ये है ना, बेसिक तो मकसद ये है कि जनाब आपने इसराइल को तस्लीम करना है। अगर देखिए इस्लाम जो उसमें से एक पॉइंट मैंने कहा, इसको अगर आप साइड पे कर दें, जो दो पिलर्स हैं बाकी, एक है उसका इकोनॉमिक है और एक इसका सिक्योरिटी है। जी तो अगर पहला जो इसका जो फ्रेमवर्क आया 2019 में जेरेड कुशनर ने जो दिया था कॉन्फ्रेंस में, जी तो पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी के नाम से आया था। जी। तो पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी विद सिक्योरिटी को उन्होंने इंटरलिंक किया हुआ था। तो और उसमें तकरीबन 50 बिलियन, फिर बाद में शायद 100 बिलियन तक चले गए कि इतनी उसमें इन्वेस्टमेंट होगी और इन सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ भी ऊपर आएंगी, और ये सारा सिलसिला था। तो और उसमें पूरा प्लान भी था, गज़ा के लिए भी पूरा प्लान था इसराइल का, और वेस्ट बैंक की कनेक्टिविटी का भी उसके अंदर एक पूरा प्लान था। तो अगर तो वो सारा प्लान उस तरीके से सामने आता है और उसमें से सिंपल तरीके से इसको लेके चला जाता है, और इंटरनल जो मसाइल हैं वो किसी एक तरीके से उसके साथ हिंच किए जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। लेकिन वो आई थिंक कंट्री टू कंट्री, जैसे आपने कहा कि उनकी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से वो इसको देख सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर एक यूएन के तहत एक बड़ा प्लान आता है तो मेरे ख्याल में कंट्रीज़ के लिए आसानी होगी उसको उस तरीके से देखना। लेकिन 1 to 1 में शायद मसाइल बढ़ेंगे। 1 to 1 से मुराद मतलब ये है कि अगर इसको हर कंट्री अपने तौर पे कैलिब्रेट करेगा अच्छा, इब्राहिम ओके, अकॉर्ड को, ओके। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बीच में आ जाएंगी जिसमें कि शायद इसको एक मंतकी अंजाम तक ले जाने में मुश्किल हो। दो, मेरे ख्याल में इब्राहिम अकॉर्ड में तो दो इश्यूज है ना सर। इशू तो ये है कि इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया आपने और आपने कहा जनाब कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, जिसने भी साइन किया, यही बात है ना। तो एक तो आपने साइन कर दिया कि जनाब हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है जनाब कि आपको उस इसराइल की तरफ से कोई एग्रेशन नहीं फेस करनी पड़ेगी इन द डेज टू कम, ऐसे ही है ना। ओवरऑल पीस की बात की, पीस की बात होगी ना, पीस थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ economic and avenues they will के। pump in money and they will like you know Israel is going to pump in money, जैसे उन्होंने UAE में पंप इन किया पैसा, ठीक है। और मतलब कि ये हालात तो ये थे कुछ अर्सा पहले तस्लीम कर इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने से पहले UAE के हालात किसी हद तक डामाडोल हुए हुए थे। तो जब साइन किए तो उसके बाद जनाब पंप इन हुआ पैसा और बेइंतहा पैसा पंप इन हुआ, ऐसे ही है ना। बट आई थिंक जैसे पहले बात की ना कि रोड टू दैट अकॉर्ड इज़ थ्रू दिस पीस एग्रीमेंट, जो कि अभी MOU है, और उसके ऊपर जो एक इंटरवोवन आप कह रहे हैं या इंटरलेस्ड एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक रोड मैप बना हुआ है कि अगर ये स्टेप होगा तो फिर ये होगा, दोनों साइडों से फिर ये होगा। तो ये जैसे ही चलेगा, इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा ओवरऑल, मेरे ख्याल में उसके बाद फिर बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अभी मतलब कि इसको हाँ, मेरे ख्याल में impose ना किया जाए। मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कहते हैं ना हमने उसको पंक्चुएट कर दिया, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको पंक्चुएट करके लगा दिया है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ टू कम इन द फ्यूचर, सो मे बी दैट इज़ टू कीप इट ऑन वन साइड। लेकिन सऊदीया ने बड़ा क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर जवाब दिया था कि इट इज़ अ डिफरेंट टेबल, इट इज़ नॉट ऑन दिस टेबल। So once we talk about that, we will talk about separately. So first we have to deal with the Gulf crisis, which is currently in hand. तो इसको जैसे डील कर लेंगे, उसके बाद स्टेप 2 में जाएं या ना जाएं, इसके बारे में फिर सोच विचार होगी। दो क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे कहा जाता है कि एक नॉर्मल बहस है कि जनाब पहले सऊदी अरेबिया तस्लीम कर ले इसराइल को तो फिर हमें तस्लीम करना चाहिए। वन, उस पर आपकी इनपुट चाहिए कि हमें उसके साथ लेके चलना चाहिए, और अगर चलेंगे तो क्या फ़ायदा है हमें इसराइल, मतलब कि सऊदी अरेबिया अगर तस्लीम करता है फिर हम तस्लीम करें, डेफिनेटली उसका फ़ायदा ही है, लेकिन किस तरीके से उसका फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है उसका। वन, सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सऊदी अरेबिया अपनी जगह, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी जगह, और इफ़ अमेरिका एंड ईरान रीचेज एन एग्रीमेंट और सबसे पहले पहल कर जाता है, सपोजिटली इट्स अ हाइपोथेटिकल बात है कि सबसे पहले जनाब पहल कर जाता है ईरान, तो वेयर डू द अदर मुस्लिम कंट्री स्टैंड? आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है ना जी बिल्कुल। वो सारी दुनिया कहेगी ये तो भाई तुसी आपे मान लेता है, सानू केड़े आरे लाता है। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड में जो
कंट्रीज़ जो कि इफ़ेक्ट होते हैं वो तो मिडल ईस्ट कंट्री हैं, तो सबसे पहला राइट तो उनका बनता है कि इसके ऊपर बातचीत वो करें, ठीक है। बाकी पेरिफेरल कंट्रीज़ आते हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें टर्की भी है, मलेशिया, इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज़ आते हैं, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ कोर्स उसमें आते हैं, तो वो सारे तो उसमें एक, लेकिन जिस तरीके से अभी ईरान के ऊपर भी एक 4 मुल्कों ने मिल के ज़्यादा अपना एक कलेक्टिव विजडम के तौर पे सामने आया, जिसके अंदर टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया है, और आखिर में भी कतर भी साथ चल रहा है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के बड़े बड़े मसाइल जो कि ना सिर्फ सिक्योरिटी, उसके साथ साथ आइडियोलॉजी को भी टच कर रहे हैं, उनके ऊपर एक मेरे ख़्याल में जो हमारी OIC है या इस तरह के बड़े जो मुस्लिम प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स के इसकी डिबेट होके इसको फिल्टर आउट करके फिर लेके आना चाहिए। अगर वाई OIC डॉक्टर साहब, अब OIC तो मतलब कि अगर आप तो इसमें से अभी भी OIC पे इतने डिपेंडेंट हो रहे हैं, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या बहुत ज़्यादा होप्स कहीं नहीं से- पिन कर रहे आप OIC से? बात आपकी ठीक है कि उससे सो फार वी हैवंट हैड एनीथिंग टेंजिबल जो कि इतना फ्रूटफुल हो, जी लेकिन ज़रूरी है, मेरा सिर्फ बैकग्राउंड का जो सवाल का जवाब ये था कि एटलीस्ट एक उसमें यूनानिमिटी एट सर्टन लेवल लाना ज़रूरी है। बिट बाय बिट शायद कंट्रीज़ जो है वो इसको, अगर सऊदी अरेबिया के पास ये होता तो शायद बहुत पहले कर गया होता, लेकिन सऊदीया चूँकि अपने आप को देखता है कि लीडिंग इंटायर गल्फ़ कंट्रीज़, GCC में सऊदी इज़ इन लीडिंग रोल, जी जी तो उसका कोई कुछ भी ऐसी चीज़ करना जिसका कि पूरी सिक्योरिटी पे उसका इफ़ेक्ट होगा तो वो सोलली नहीं करेगा। तो उसी हवाले से पाकिस्तान का और हमारा जो एग्रीमेंट है, उस हवाले से पाकिस्तान का जो गल्फ़ के साथ एक हिस्टोरिकल हमारे टाइज़ हैं और हम जिस तरीके से चलते हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख़्याल में ये बात की बात है, इसके ऊपर देखा जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि दूसरा सवाल का जो पार्ट है आपका बड़ा हाइपोथेटिकल, हाँ, कि अगर ईरान वाला, हाँ, कि वो ऐसे ही है जैसे कि कोई रेस लग रही है, कि सबसे पीछे था वो ट्रक भाग के आगे निकल गया और सारे देख रहे हैं कि ये तो सबसे पीछे था, तो इस तरह की कोई सिचुएशन और उसमें आगे जाके कोई एक बंदा निकल के साइन कर दे, तो मेरे ख्याल में अगर जो इनिशियल जिन कंट्रीज़ ने साइन किया ना, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। और गैप इसीलिए आया, जिन्होंने साइन किया वो भी अब देख रहे हैं कि हमने क्यों साइन किया, क्योंकि उसके अंदर सवालात बहुत है। मेरे ख्याल में किसी एक कंट्री के लिए इब्राहिम अकॉर्ड में जाके साइन करना अब शायद इतना मुमकिन ना हो, क्योंकि उसका इफेक्ट सब पे आएगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बड़े आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया है, क्योंकि उस वक्त लेकिन देन अगेन फिर उसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है, उसने अपना इंटरेस्ट सामने रखना है ना। जी जी बिल्कुल। मतलब उसने कुछ जाके दूसरे मुल्क का इंटरेस्ट तो अपने साथ चिपिन नहीं करना ना। सो हर मुल्क ने अपना इंटरेस्ट पहले देखना है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से कर लिया है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कई मुस्लिम ममालिक ने तो कब का कर चुके हैं जनाब। इब्राहिम अकॉर्ड क्या, वो तो तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को, उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड में आ गए। और अभी जनाब इब्राहिम अकॉर्ड ना सही हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब भी तो हो सकता है इब्राहिम अकॉर्ड का नाम ले रहे हो, बेसिकली कह रहे हो ना भी साइन करो इब्राहिम अकॉर्ड, तुसी तस्लीम कर लो हैं जी। बेसिकली तो यही गल है ना। ज़्यादा उसके अंडरलाइनिंग मैसेज यही है। अंडरलाइनिंग मैसेज ये कि तुम इसराइल को तस्लीम कर लो। जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने तस्लीम नहीं किया, वे तस्लीम कर लो। डॉक्टर राना साहब, आपके सवाल का बहुत बड़ा वेट है, मैं समझता हूँ, जो आपने मुझसे हंसते हंसते कर लिया था ईरान के बारे में। मेरी आदत है, मैं हंसते हंसते वो इसलिए कि देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल एक पेज पे आए, तभी ये अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। और इसके अंदर ये इस तरीके के बीज फिर बो देंगे हम कि आइंदा रिकरेंस ना हो। जो कि ईरान का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर साल 2 महीने बाद आके आप ईरान को जो है अटैक कर देते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो नाउ। तो इसमें परमानेंट, हाँ, ही वांट्स अ परमानेंट सीज फायर, ही वांट्स अ परमानेंट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। उसके लिए अगर इजराइल को आना है तो इजराइल का जो रास्ता है वो यही है कि पहले आप मुझे माने, आप मुझे मानेंगे तो फिर बात करेंगे। अब वो किस टर्म्स पे माने, उसके लिए इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने फ्रंट पे रखा हुआ।
اور 2021 میں مئی میں یا جون میں میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک بڑی کانفرنس کی تھی جس میں نیتن یاہو صاحب بھی وہاں ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب دنیا میں امن کا اور پیس کا اور سب کا ایک ہی علاج ہے، دس از ابراہیم اکارڈ. تو ہے ضرور، میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے اندر اب ویٹ بڑھے گا. دیکھیں جی 47 ایئرز ہو گئے سینکشنز لگے ہوئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران پہ سینکشنز لگے ہوئے، کاروبار پھر بھی کرتا رہا ساری دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ کیسے کرتا رہا وہ ایک لمبی سٹوری ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، پیسے تو پھر بھی بناتا رہا وہ. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ملک کے اندر کے حالات جو ہے دن بہ دن خراب ہوتے رہے. لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ایرانین عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کے حالات خراب ہوتے رہے. چلیں ٹھیک ہے، ان کی انکلینیشنز جو ہیں اگر دیکھا جائے بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ایرانی عوام کی جو ہے وہ یورپ کی طرف زیادہ ہے. یہ بھی بات فیکٹ ہے، مطلب ریالٹی پہ بات کر لیتے ہیں نا. اب ساری باتیں اگر سامنے اب رکھیں ہم تو ٹھیک ہے، اگر وہ سینکشن سے باہر نکل آتے، امریکہ ان کو بریدنگ سپیس دیتا ہے ایران کو. امریکہ جناب ان کو کہتا ہے جناب کہ یس نو مور ایکٹیویٹیز، نو مور لائک اسٹرائکس آن یو. ٹھیک ہے، آپ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، یہ ایم او یو سائن ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، وہاں تک پہنچ گئے. ناؤ آپ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لو. ہو سکتا ہے کہ جی ایسی کر لینے. ٹھیک ہے، اٹس اے ون ون سچویشن فار اسرائیل آلسو. اسرائیل کہے گا جی ساری دنیا میں پراکسی وار تو ختم کرنی پڑے گی نا ایران کو. جی بالکل بالکل. پراکسی وارز ختم کر دے گا وہ. جب پراکسی وارز ختم ہوگی تو یہاں پہ اسٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی، ایران کے اندر پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، پمپ ان کرنا شروع کر دے گا اسرائیل. جیسے جہاں جہاں پہ لوگوں نے جہاں جہاں کے ممالک نے تسلیم کیا ہوا تو پیسہ پمپ ان ہوگا، پیسہ پمپ ان ہوگا، اکانومی جناب بڑھنے شروع ہو جائے گی. سو سچویشن تو بڑا اچھی بن جاتی ہے ایران کے لیے. دیکھیں ایران آپ نے بالکل صحیح کہا ہم مطلب پتہ چلے ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے مراد کئی مسلم ممالک وہیں پہ بیٹھے ہوئے، وہ پہلے جناب دوڑ لا کے جس طرح تسی کہہ رہے پتہ چلے وہ پہلے ہی سائن کر کے بیٹھ گئے. دیکھیں ایران، آپ نے صحیح کہا کہ ایران کی ہم جب کہتے ہیں کہ ریزیلینس بہت ہے اور بڑی قوم نے اس میں دکھایا ہے، اسپائن دکھائی ہے، بالکل دکھائی. تو میرے خیال میں کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیڈ اے بیڈ ہٹ آلسو. اکنامکلی ان کی انڈسٹری، ان کی پروڈکشن لائنز، ان کی انفراسٹرکچر، ان کے اسکولز، کالجز، روڈز، بریجز، واٹ ناٹ ہیز بین ڈسٹرائڈ، ایئرپورٹس، پورٹس، یہ ساری چیزیں ان کی. اور اسی لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگلے 30 سال تک یہ اٹھ نہیں پائیں گے، تو کچھ بیسس تو ہے اس کی. لیکن اگر وہ چیز مائنڈ میں رکھے چلے، اس حوالے سے آپ کی بات صحیح ہے کہ دے نیڈ دا منی، دے نیڈ دا منی. اور اسی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ٹول کی بات کرتے ہیں، دس از ون آف وہ مطلب وہ کہتا ہے ایران کہ بھائی میری قصور کسی تسی ایویں میرے تے چڑھائے ہو. ہاں، اب ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں یا سینکشنز ہیں، اگر یہ ابراہیم ایکارڈ کے ساتھ لنک پہ کچھ ایسی بات چیت چل پڑتی ہے اور پھر ایگریمنٹ کی طرف ان کا رجحان بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی جنریٹ ہو جائے آنے والے دنوں میں. دس از واٹ آئی تھنک. میرے خیال میں دس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. آئی ایگری کہ میرے ذہن میں نہیں تھا، آپ نے اس کو نہیں، میرے ذہن میں اور بھی بڑی گلاں نے میں آساس کے پوچھ لینا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.